Good morning, students of class 9th. Today I am going to start a new chapter number 8, quadrilaterals. Firstly, students, there is a question that what is quadrilateral? Such a figure formed by joining 4 points in order is called a quadrilateral. Such a figure, quadrilateral, definition of quadrilateral, such a figure formed by joining 4 points is called quadrilateral. So take 4 points, 1, 2, 3, 4. Now join all these 4 points in order. Means इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करिए, फिर इससे करिए, फिर इससे करिए और फिर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए. नाउ दिस शेप इज लाइक अ क्वाड्रिलेटरल. सपोज द नेम्स आर ए, बी, सी, डी. माय डियर, ए क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस. Here AB, BC, CD and DA are 4 sides. AB, BC, CD and DA. These are the 4 sides, 4 angles. Angle A, angle B, angle C, angle D are 4 angles. And 4 vertices A, B, C, D. A, B, C, D are 4 vertices. Yes, my dear students, again I am going to revise this quadrilateral. A quadrilateral, such a figure formed by joining 4 points in order is called a quadrilateral. 4 पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम मिलेगा आपको वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा. एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. एंड 4 ही क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी. माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं, ए सी एंड बी डी आर द 2 डायगोनल्स. Now there is a question that what will be the sum of a quadrilateral? What will be the sum of all angles of a quadrilateral? The sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. देखिए, now angle sum property of a quadrilateral. I am going to prove this thing. Next, angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. Suppose this is a quadrilateral, ABCD. What is given? Given है ABCD is a quadrilateral. ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है. टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C plus angle D. The sum of all 4 angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. ये हमको प्रूफ करना है कि चारों एंगलों का सम क्या होता है, 360. Now to proving this, join any one diagonal, either AC and either BD. This is the construction work. So here I am going to join the diagonal AC. AC को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. Suppose this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3 and this angle is 4.
कंस्ट्रक्शन में लिखिए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC। हेयर एंगल A क्या है? व्हाट इज एंगल A? एंगल A इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड व्हाट इज एंगल C? एंगल C इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट इज एंगल C इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ firstly in this lower triangle, in triangle ABC, I am going to apply angle sum property of triangle। तो देखिए प्रूफ में, firstly in triangle ABC में using angle sum property of triangle, triangle की angle sum property लगाइए। we know that very well, the sum of three angles of a triangle is 180 degree। this theorem already we have done in the previous chapter, chapter number 6, lines and angles। angle 2 plus angle B plus angle 3, angle 2 plus angle B plus angle 3 equal to 180 degree। this is the equation number 1। now in another triangle ADC में again apply angle sum property of triangle। in triangle ADC में again apply angle sum property of triangle। क्या होगा इस ट्रायंगल में? एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ on adding these two equations, and we will get our answer। इसको रिमूव करने जा रहे हैं ऊपर से। एक बार आपको एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। सबसे पहले क्या किया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था, ये गिवन था और प्रूव करना था 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो ज्वाइन एनी वन डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया। When we join AC, then line segment AC, diagonal AC divide the quadrilateral in two triangles। In both the triangles, we will apply angle sum property of triangle। पहले नीचे वाले में angle 2 plus angle B plus angle 3 equal to 180 degree। फिर another triangle में angle 1 plus angle D plus angle 4 equal to 180 degree। These are two equations। Now on adding these two equations, now on adding equation 1 and 2, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए एंगल 2 LHS में फर्स्ट इक्वेशन की क्या क्या लिखा है? एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस LHS में सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है? एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन में 180 डिग्री प्लस सेकंड इक्वेशन में भी क्या है? 180 डिग्री। नाउ इनको सीक्वेंस में लिख लीजिए, एंगल 2 और 1 को एक साथ लिख लीजिए, बिकॉज वी नो वेरी वेल द सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 और 1 दोनों एक साथ आ गए हैं। एंगल B हेयर एज इट इज। नाउ राइट एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D एज इट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल A, एंगल B एज इट इज 3 प्लस 4 एंगल C प्लस एंगल D एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दिस वी विल स्टडी हियर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। Types of quadrilaterals, our next topic, types of quadrilaterals। in this chapter, chapter number 8, quadrilaterals, we know that very well there are many different types of quadrilateral। one is parallelogram, second one is rectangle, third one is rhombus, square, ट्रैपीजियम, आइसोसेलेस ट्रैपीजियम, काइट, ये डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं आपके। नाउ फर्स्ट
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, types of quadrilaterals. First, parallelogram. Here we will discuss the properties of quadrilaterals. First, parallelogram है आपका, तो parallelogram की properties क्या क्या होंगी? This is the parallelogram. ABCD is a parallelogram. Here, in a parallelogram, my dear students, in a parallelogram, opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite sides are equal. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन सेगमेंट इसके इक्वल होगी. एंड पैरेलल ऑल्सो, और पैरेलल भी होती हैं. ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या होगी? पैरेलल होगी. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. Opposite angles are equal. ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई हैं. नाउ सेकंड इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ABCD. In a rectangle, again opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. सारे एंगल 90 होते हैं. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री एंड द डायगोनल्स ऑफ ए एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. AC की लेंथ BD के इक्वल होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल दोनों में डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं. लिख दीजिए यहां पर, डायगोनल्स bisect each other. Bisect each other. डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. इसमें भी लिख दीजिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other. ये आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. नाउ आफ्टर दिस थर्ड क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस क्या होता है? My dear, in a rhombus all sides are equal. ये एक रोम्बस है आपका ABCD. ये आपका एक रोम्बस है. रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. थर्ड क्वाड्रिलेटरल है आपका रोम्बस. In a rhombus, all sides are equal. सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल.
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90, डायगोनल्स 90 में बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और ये सारे एंगल्स क्या होंगे, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है आपका स्क्वायर। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है। इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। इन ए स्क्वायर all sides are equal, each angle is 90 degree, diagonals are equal, diagonals equal होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को 90 पर। diagonals are equal and bisect each other at 90। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है आपका ट्रेपीजियम। व्हाट इज द ट्रेपीजियम? If one pair of opposite sides are, any one pair of opposite sides are parallel, then the quadrilateral are said to be a trapezium। एक ये trapezium है ABCD, इसमें only one pair, केवल एक पेयर, या तो ये या ये वाला पेयर, ये क्या होना चाहिए, parallel होना चाहिए। If one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium। Any one pair, if any one pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium। तब ये क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन ए ट्रेपीजियम AD एंड BC आर द नॉन पैरेलल साइड। ये AD और BC क्या है, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हुई, नॉन पैरेलल साइड हुई। एंड इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर इन नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल है, देन दिस ट्रेपीजियम आर सेड टू बी अ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इफ non-parallel sides are equal, if non-parallel sides are equal, then trapezium is called isosceles trapezium। Then the trapezium are called isosceles trapezium। नेक्स्ट पार्ट आपका व्हाट इज काइट, काइट क्या होती है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है आपका काइट। दिस इज अ काइट, A B C D,
माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ काइट. इन दिस काइट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. जो पास वाली साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? वो अनइक्वल होती हैं. इन ए काइट adjacent sides are equal. Adjacent means पास वाली. adjacent sides are equal but opposite sides are unequal. Opposite sides are unequal. Opposite sides क्या होती हैं? unequal होती हैं. Diagonal इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90. डायगनल बाइसेक्ट नहीं करते, डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. ये आपका नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हो गया. डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ लिया. अब कम ऑन द पेज नंबर 139. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दीज थ्योरम्स. द थ्योरम फर्स्ट इज थ्योरम 8.1. क्वेश्चन इज दिस: अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two congruent triangles. This is the theorem 8.1. Theorem 8.1. The verification of this theorem I am going to start. कौन से पेज पर है ये? पेज 139 पर. थ्योरम 8.1. ए डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangles. एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है और in which AC is the diagonal. What is given? गिवन है ABCD is a parallelogram. This is the symbol of parallelogram. ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. AC क्या है? एक डायगोनल है. टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC. Triangle ABC is congruent CDA. To prove triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रेंट है. हमें ये प्रूफ करना है. तो देखिए, फर्स्टली माय डियर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है. तो फर्स्ट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. AC side is the common side of both the triangles. And second one, this angle is also equal to this angle by alternate interior angle से. ये भी क्या हो जाएगा? तो देखिए, firstly proof. In triangle ABC and triangle CDA में, first suppose this angle is 1, this is 2, this is 3 and this angle is 4. Angle 1 equal to angle 4. Angle 1 equals to angle 4 by alternate interior angle से.
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. फर्स्टली साइड AC इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स. AC इक्वल टू AC, it is a common. Second, angle 2 equal to angle 3, angle 2 equal to angle 3 by alternate interior angle से, alternate interior angle से. तो कौन सा रूल लग जाए यहाँ पर? बाई एंगल साइड एंगल से, बाई एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA. फर्स्टली देखिए दोबारा से, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, साइड AC इज द कॉमन साइड, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो बाय एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ स्टूडेंट्स, different types of quadrilateral properties you have to learn at home. Complete your work in mathematics notebook. Up to that, thank you.